فرشتے آئی تھی؟ وہ چوکی، پھر اس کی اشارہ کرتے کتاب کی طرف دیکھا تو رہ سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم۔ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ You love your holy book too much, right? آپ کو اپنی مقدس کتاب بہت عزیز ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ Of course سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ بس اپنے قرآن میں گم ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارات سے مزین افراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سا کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی۔ اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی کہ اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے۔ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخسار سے پھسل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا۔ وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے، صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن میں جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ ان اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور وہ انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا، مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیر و ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر پر سکون سا اتر گیا تھا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے۔ اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسرا اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔
वो एक साल जो उसने हुमायूं के साथ अपने घर में गुजारा, एक पुरसुकून मनचाही रियासत थी, वो दौर खत्म हो चुका था। इसका अब मक्का शुरू हुआ था। ताइफ के पत्थर अब लगने थे, मगर वो जानती थी कि अगर वो कमजोरों का रब इसके साथ है तो इसे भी किसी उतबा और शीबा के बाग में पनाह मिल जाएगी, इसे भी अंगूर के खोशे मिल जाएंगे। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की दुआ याद आई और इसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तभी दरवाजा खोलकर सिस्टर अंदर दाखिल हुई। इसे जागता देखकर जरा सा मुस्कुराई और आगे बढ़ी। कैसा फील कर रही हैं आप? वो इसे लगी ड्रिप को चेक करने लगी थी। वो जैसे किसी ख्याल से जागी। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत टाइम बाद होश आया है। डॉक्टर्स खो चुके थे, मालूम नहीं। वो कदरे बेबसी से मुस्कुराई। मैंने तो वक्त का तायुन भी खो दिया था। मायूसी की बातें मत करें मैम, खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो जरा सी चौंकी। ये अंगूर के खोशे लेकर हमेशा नैनवा के अत्तास क्यों आते हैं? इसे बेख्तियार सोचा था। हाँ, मुझे यकीन है वो मेरी मदद करेगा। वो खुलकर मुस्कुरा दी। शायद वो पहली दफा वो मुस्कुराई थी। तुम्हारा इसकी मदद पे कितना ईमान है सिस्टर? बहुत ज्यादा मैम। क्रिस्ट मदद मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। वो नरमी से मुस्कुराती। इसका पुरयकीन चेहरा देखेगी। तुम जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कुरान क्या कहता है? लड़की को थमे सिस्टर मेरियन के हाथ लम्हे भर को थमे। इसने पलके उठाकर इसे देखा। इसकी सी आंखों में हैरत भरा सवाल उभरा था। महमल ने एक सानिया को इसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हैंडसम, अ वेरी हैंडसम मैन, ही वाज मसीह ईसा बिन मरियम। रियली? सिस्टर मेरियन की आंखों में दीप से जल उठे थे। ऑफ कोर्स, हमारी किताब में लिखा है कि वो बेहद हैंडसम थे। बहुत वजीह, सिर्फ बयान नहीं, इनके पास राइटिंग पावर भी थी। कलम की ताकत, वो बहुत अच्छे लगते थे। और जानती हो वो अपने इन मिरेकल और टेंटेंस के बारे में क्या कहा करते थे? क्या? वो दम बखुद बिना पलक झपके सुन रही थी। वो कहते थे ये मुझे मेरे रब ने सिखाया था। वो साथ लेने को रुकी, फिर जैसे याद करके बताने लगी, जब से मुझे ये पता चला है मैं अपनी कोई भी तारीफ सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम को कोट करती थी। कोई मेरी तारीफ करता तो मैं कहती ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ब्यूटीफुल, सिस्टर मेरियन बेखुद सी कह उठी। फिर आहिस्ता से चीजें समेटने लगी। मिसेस हुमायूं, आप पहली मुस्लिम हो जिसने बताया है कि आपकी होली बुक एक यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, वरना मुस्लिम हमेशा बहुत सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारा अकीदा गलत है। अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ते ने झांका। तुम उठ गई? हाँ, कब की? वो चौंकी, फिर संभल गई। फरिश्ते अंदर चली आई। अबाया और स्याह हिजाब को चेहरे के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह ताजा और खूबसूरत। आपने शादी नहीं की फरिश्ते? महमल ने कहा और फिर इसने देखा कि फरिश्ते की सुनहरी आंखों में साया सा लहराया है। शादी में क्या रखा है महमल? वो फीका सा मुस्कुराई। सुन्नत समझ के कर ले। वो सर झुकाए, चादर पे उंगली से नादीदा लकीरें खींचने लगी। फिर आप शादी कर लेंगी ना? जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो मेरे लिए तुम हुमायूं तैमूर बहुत हो। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। चलो, तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, इससे बना कर रखो। अब इसको भगाना नहीं है। घर शिफ्ट होकर भी रोज इसकी शक्ल देखना तो होगी ना। फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक ख्याल इसे इत्मीनान बख्श गया। घर, इसका घर, अपना घर। इस हफ्ते वो वापस चली जाएगी, इसने तमानियत से सोचा। सिस्टर मेरियन फाइल हाथ में पकड़े पेन से इसमें कुछ इंदराज कर रही थी। महमल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी थी। इसके भूरे सीधे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तबील बीमारी ने इन्हें बेहद पतला और मुरझाए फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। इसके चेहरे पे यकायक ढेरों तफक्कर उमड़ आया था। वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जाने पे यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब है, काफी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। काफी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं? मैं 3 साल से इधर हूँ, जब से इन्हें आता देखती हूँ। अमूमन फ्राइडे को आते हैं। बस इधर से झांक कर इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते हैं। कभी आपके पास रुके नहीं। क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही इसके जहन के पर्दे पर बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल और मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी। क्या इनको वो याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर उन्होंने इसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते कहते, वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बस यूं ही जानने वाले हैं।
فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کے غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے، کوئی نام اتا پتا کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی، وہ مایوس سی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا، رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھتے کون کون آتا ہے فرشتے، ہم سب۔ وہ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی، آقا جان لوگ کبھی نہیں آئے تھے، پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچی کیے اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا، میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی محمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر محمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال دیکھتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا، اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھسے ہوئے گال، جلدی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پسمردہ بیمار رکا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس کی تر و تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دیں، مجھے یہ بال نہیں بنانے، اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصب ہوا، میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھی، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نہیں تھی، جسے ہمایوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پر پیچھے سے دھکیلتی فرشتے خوش دلی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گم سم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھی گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب شاید وہ صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہسپتال میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے؟ مگر ایسی باتیں کہیں کہاں جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئے، اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا۔ مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے، محمل سیڑھیاں چڑھتا اس ویل چیئر کے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا، اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، ان کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ محمل ششدر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے یا تم ہرٹ ہو یا وہ، پلیز۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تم دونوں کے پرسنل میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ محمل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلے کیسے سو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ دونوں چھن جائے وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں اسے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائے، وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔
अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो महमल बेख्तियार कह उठी, आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपके इस केयर का बदला नहीं दे सकती, मैंने बदला कब मांगा है। वो नरमी से इसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई। दिन पसमर्दगी से गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते की जबरदस्ती मजबूर करने पे बाहर लॉन में आती और वहाँ भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके इसका जहन बटा रही होती और ये बातें अमूमन फरिश्ते इससे नहीं करती थी बल्कि इसकी व्हील चेयर धकेलते हुए। कभी वो क्यारी में गोडी करते माली से मुखातिब होती तो कभी बरामदे का फर्ज होती मुलाजमा से। फरिश्ते अब इतना नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। इसका अंदाज पहले से ज्यादा संजीदा हो गया था और ये वक्त का असर था, वो असर जो ना चाहते हुए भी वक्त हर इंसान पे छोड़े जाती है। फरिश्ते ने घर को अच्छी तरह से संभाला हुआ था, क्योंकि हर काम की जिस वक्ती मुलाजमाएं रखी हुई थी मगर तमाम इंतजाम इसके हाथ में था। इसके बावजूद वो न किसी पे हुक्म चलाती न इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। मामल या मुलाजमों से बात करने के अलावा वो ज्यादा कलाम भी न करती थी। तैमूर और हुमायूं के कमरे के अंदर वो भी नहीं जाती थी बल्कि दरवाजे पे खड़े होकर सफाई करवाती। मुलाजमों को तनख्वाह हुमायूं देता था। फरिश्ते गेस्ट रूम में ही कयाम करती थी, वो भी शदीद जरूरतन। और तैमूर तो वैसे भी हर शे से चिड़ा हुआ लड़का था तो वो इसे मुखातिब नहीं करती थी। कभी जो कर ले तो तैमूर इस बदतमीजी से पेश आता था कि अल अमान। महमल ने नोट किया था कि थोड़ी देर बदतमीजी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था और अगर मजीद कुछ कहा जाए तो वो चीजें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज नहीं करता था। फरिश्ते बहुत मोहतात तरीके से इस घर में रह रही थी, जैसे इसके जहन में था कि इसे जल्दी यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बिल्किस ने इसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से महाना राशन की चीजें लेकर आती थी, खुसूसन चिकन और गोश्त हमेशा वो खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला उसने इसे रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर इसने इसे रोका तो वो वापस स्कॉटलैंड चली जाएगी। नतीजतन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था कि वो इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और शायद इसके जहन में होगा कहीं कोई इसे मुफ्तखोरा न समझे। अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार को इसने हमेशा कायम रखा था। महमल को खुद इसका जेरबार महसूस करने लगी थी। हुमायूं से इसकी मुलाकात ना होने के बराबर होती। वो कभी दोपहर में घर आता और कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता। अक्सर बहुत रात गए घर आता। वो इंतजार में लाउंज में व्हील चेयर पे बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता और ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाता और वो इसकी पुश को नम आंखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता। वो खाना डाइनिंग टेबल पे अकेले खाता था। अगर महमल को इधर बैठे देखता तो फौरन वापस चले जाता। नतीजतन बिल्किस इसे इसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था। बर्गर, बेटीज के डब्बों से फ्रीज और फ्रीजर और फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू से सब्जी वाली टोकरी भरी रहती। खाने पीने का वो बहुत शौकीन ना था। स्कूल से लाए चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठा रहता। अगर महमल को आते देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही न पा रही थी कि वो इतना नाराज किस बात पर है। आखिर इसने किया ही क्या है। इस घर के वो 3 मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे और अब वो चौथी अजनबी इनकी अजनबियत बताने को आ गई थी। फरिश्ते शाम में शायद मस्जिद जाती थी। वो गालिबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। महमल ने एक दफा पूछा तो वो उदासी से मुस्कुराती थी। सुबह की क्लासेस लेना अस्पताल की वजह से मुमकिन न था। मुख्तसरन बताकर वो हिजाब दुरुस्त करती बाहर निकल गई थी। महमल का बहुत ख्याल रखती थी। इसके दवा, मसाज, मफलूज अज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इस पर मेहनत करना, फिर ख़िज़ा का ख्याल, वो अनथक लगी रहती बिला किसी अजर की तमन्ना किए या एहसान जताए। इस शाम भी फरिश्ते मस्जिद गई हुई थी। जब सियाह बादल आसमान पे छाने लगे। हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं होता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर मंजर देख रही थी। देखते ही देखते दिन में रात का समा बन गया। बादल जोर से गरजने लगी। मोटी मोटी बूंदें टप टप गिरने लगी। बिजली कड़कती तो एक लम्हे को खौफनाक सी रोशनी बिखर गई। इसे बारिश से पहले कभी डर नहीं लगा था, मगर आज लग रहा था। हुमायूं नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थी। इसे लगा वो बहुत अकेली है, तन्हा है। बिजली बार बार कड़क रही थी, साथ ही इसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। बेख्तियार इसे पसीना आने लगा। क्या करे, किसे बुलाए। वो तेजी से व्हील चेयर के पहिए दोनों हाथों से चलाती लाउंज में आई। फोन एक तरफा तुपाई पे धरा था। इसके साथ एक चिट भी थी जिसमें हुमायूं और फरिश्ते के नंबर लिखे थे। वो गालिबन तैमूर के लिए लिखे गए थे। इसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया और फरिश्ते का नंबर डायल किया। फिर रिसीवर कान से लगाया। घंटी जा रही थी मगर वो उठा नहीं रही थी। गालिबन क्लास में थी। इसने मायूसी से फोन
रख दिया। तभी निगाह दोबारा इस चिट पर पड़ी। कुछ सोचकर इसे धड़कते दिल के साथ रिसीवर दोबारा उठाया। नंबर डायल करते हुए इसकी उंगलियां लरज रही थी। तीसरी घंटी पे हुमायूं ने हेलो किया था। हेलो हुमायूं, वो बमुश्किल बोल पाई थी। कौन? मैं महमल। दूसरी जानिब एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हाँ बोलो। मसरूर सर्द महर सी आवाज उभरी। आप किधर हैं? प्रॉब्लम क्या है? कदरे बेजारी से वो बाहर स्टोर रूम तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप घर आ जाएं। इसका गला रुंध गया, आंखें डुबडुबा गईं। ओहो, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी कहाँ से आ जाऊँ? मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं जैसे भी हो। बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा है। साथ ही इसके आंसुओं में शिद्दत आ गई। मैं नहीं आ सकता, फरिश्ते या किसी मुलाजमा को बुला लो। वो झल्लाया था। फरिश्ते घर पे नहीं है, आप आ जाएं हुमायूं प्लीज। क्या बकवास है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम माधुरी का ड्रामा रचाकर मेरी हमदर्दी हासिल कर सकती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। खुदा के लिए अब पीछे छोड़ दो मेरा। और ठग से फोन बंद हो गया। उस वक्त के आलम में रिसीवर हाथ में लिए सुनी सी बैठी रह गई। कितने लम्हे गुजरे थे, कितने बादल गरजे थे, कितनी बिजली चमकी, कितने कतरे बरसे। वो हर शेर से गाफिल बिना पलक झपके शल सी बैठी थी। लब अध खुले, आंखें फटी फटी और हाथ में पकड़ा रिसीवर कान से लगा। वो कोई मुजस्मा था जो टेलीफोन स्टैंड के साथ इस व्हील चेयर पे बेहस हरकत पड़ा था। फिर कितनी देर बाद रिसीवर इसके हाथ से फिसला और नीचे लुढ़क गया। इसकी जमीन से टकराने की आवाज पे बेख्तियार इसने पलकें झपकी और आन की आन में इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। इसकी हिचकी बन गई थी और पूरा वजूद लरस रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हुमायूं ने इसे वो सब कहा था इतने गुस्से और बेजारी से जैसे वो इससे उकता चुका था। हाँ, वो मर्द था, वजिया शानदार सा मर्द। कब तक एक कोमे में बेहोश पड़ी नींद मुर्दा बीवी की पट्टी से लगा रहता। इसको अब महमल की जरूरत ना थी। इसे अब महमल के वजूद से भी उकताहट आती थी। शायद वो अब इससे शादी करने पर पछता रहा था। अपनी वक्ती जज्बातियत पे नादिम था। दफ्तन आहट पे इसने आंखें खोली। तैमूर सामने सोफे के इस तरफ खड़ा इसे देख रहा था। चुपती खामोश निगाहें जिनमें अजीब सा तनफ्फुर था। तैमूर, उसकी जख्मी ममता बिलबिलाई। इधर मेरे पास आओ बेटा। इसने दोनों हाथ फैलाए, शायद वो इसके गले से लग जाए, शायद कि हुमायूं के रवैये की तपिश कुछ कम पड़ जाए। आई हेट यू, वो तराक कर बोला और इसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा। हुमायूं के अल्फाज क्या कम थे जो ऊपर से इस 7 साला लड़के का अंदाज उसकी रूह तक छलनी हो गई। मैंने क्या किया है तैमूर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों नाराज हो मुझसे? यू लेफ्ट मी व्हेन आई नीड यू। आपने मुझे इस वक्त छोड़ा जब मुझे आपकी जरूरत थी। वो जोर से चीखा था। आई हेट यू फॉर एवरीथिंग। वो मुड़कर भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। लम्हे भर बाद इसने जोरदार आवाज से तैमूर के कमरे के दरवाजे को बंद होते सुना। क्या तुम्हें छोड़ने में मेरा अपना इख्तियार था तैमूर? तुम इतनी सी बात में मुझसे नाराज नहीं हो सकते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे बदजन किया हो। वो दुखी दिल से सोचती वापस कमरे तक आई थी। इसके रेपल बेड की साइड टेबल पर सफेद कवर वाला कुरान रखा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता इसे उठाया और दोनों हाथों में थामे अपने सामने किया। सफेद कवर पे मध्यम सा मिटा मिटा सा मीम लिखा था। जाने इसने क्यों और कब इधर लिखा था। वो कोशिश के बावजूद याद ना कर पाई। फिर सर झटक कर इसे वहां से खोला जहां से फजर के बाद तिलावत छोड़ी थी। इसने वो आयत देखी जहां बुक मार्क लगा था। फिर ताऊज़ तस्मिया पढ़ा और अगली आयत से पढ़ना शुरू किया। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बात गमगीन करती है। इसने बेयकीन से इस आयत को देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बात गमगीन करती है, बस बेशक वो तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। इसने फिर से पढ़ा और फिर दमबख्त होकर एक एक हुर्फ को उंगली से छूने लगी। क्या वो वाकई इधर लिखा था? ओह अल्लाह ताला! उसके आंसू फिर से गिरने लगे। आपको हमेशा पता चल जाता है। मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वो बुरी तरह रो दी। अब की बार ये दुख के आंसू न थे, बल्कि खुशी के थे, सुकून के थे, रजा के थे। अगर आप मुझसे यूं ही बात करते रहे तो फिर मुझे जिस हाल में भी रखेंगे। मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी। इसने चेहरा उठाया और हथेली की पुश से आंसू साफ किए। अब इसे रोना नहीं था, अब इसे सब्र करना था। ताइफ के पत्थर दरअसल अब लगने शुरू हुए थे। सब्र और शुक्र, इसने 2 सहारों को बिल आखिर थाम ही लिया था। शाम बहुत सुहानी सी उतरी। कॉलोनी के साफ सड़क के इतराफ सब दरख्तों के ताज़ा पत्तों की महक ठंडी हवा से हर सू बिखर गई थी। बिल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। वो साथ साथ इधर उधर की छोटी मोटी बातें भी कर रही थी, मगर महमल का ध्यान कहीं और था। वो गुमसुम सी दूर उफक को देख रही थी जहाँ परिंदों के कौल उड़ रहे थे।
इस रोज के तूफान के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था और इसी ठंडी हवा में बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्किस उसकी व्हीलचेयर धकेलती दूर पार्क तक ले आई थी। इससे आगे इनके सेक्टर का मरकज था। वहाँ बुटीक, शॉप और रेस्टोरेंट की चहल पहल होती थी और ऐसी जगहों पे जाते हुए इसका दिल घबराता था, तो इसने बिल्किस को आगे जाने से मना कर दिया। बस यही पार्क तक ठीक है, इसी में चलते हैं। बिल्किस सर हिलाकर व्हीलचेयर अंदर ले जाने लगी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना महमल बीबी, तो साहब बहुत रोए थे। मैंने खुद इन्हें रोते देखा था, बहुत दचका लगा था इनको। कौन? हुमायूं? वो चौकी थी। हाँ जी, उन्होंने छुट्टी ले ली थी। कई माह तो वो अस्पताल में आपके पास ही रहे थे। तैमूर बाबा को तो भुला ही दिया था, मैंने बड़ा किया है जी तैमूर बाबा को। बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा बाबा। जब 4 साल का था तो आपके लिए फूल लेकर जाता था। वहाँ अस्पताल में आपके सिरहाने बैठकर घंटों बोला करता था। फिर अब क्या हुआ है इसे बिल्किस? इसने दुख से पूछा था। बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता बाहर की पथरीली रविश पर व्हीलचेयर चला रही थी। दूर घास पे बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े रो रहा था। ऐसे हर बच्चे में तैमूर बाबा ऐसा नहीं था बीबी, वो तो बहुत प्यार करने वाला बच्चा था, मगर फिर अब पिछले 1 सालों में वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। साहब भी तो इसे तवज्जो नहीं देते। पहले तो छोटा था पर अब बहुत समझदार हो गया है, सारी बातें समझता है, इसलिए सबसे नाराज रहता है। और तुम्हारे साहब, वो ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं बीबी, वो शुरू में आपका बहुत ख्याल रखते थे, फिर आपके हादसे के चौथे बरस इनकी कराची पोस्टिंग हो गई थी। वो 1.25 साल उधर रहे, वहाँ से वापस आए तो बहुत बदल गए थे जी। अब तो 1.5 साल हो गया है इनको वापस आए हुए, मगर अब तो वो आपका या तैमूर बाबा का हाल भी नहीं पूछते। कराची में ऐसा क्या हुआ था जो वो बदल गए? वो खोई खोई सी बोली थी। मालूम नहीं बीबी, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। इनके कराची जाने से कोई 2 हफ्ते पहले मुझे याद है इधर आपके घर आपके कोई रिश्तेदार आए थे। इनसे बहुत बहुत लड़ाई हुई थी साहब की। कौन आया था? इसे वहशतज़दा सी होकर गर्दन घुमाई। बिल्किस के चेहरे पर तज़ब्ज़ुब के आसार थे। असल में बीबी, आपके रिश्तेदार कभी आए नहीं, तो जो बस एक ही दफा आए तो मुझे याद रह गया। आपके ताया के बेटे थे। कौन? फवाद? इसका दिल जोर से धड़का था। नाम वाम तो नहीं मालूम, मगर साहब ने इनसे बहुत झगड़ा किया था। दोनों बहुत देर तक ऊंचा ऊंचा लड़ते रहे थे। मगर हुआ क्या था? झगड़ा क्यों हुआ इनका? वो मुस्तरिफ और बेचैन सी हो गई थी। मैं किचन में थी बीबी, कुछ समझ में तो नहीं आया कि वो क्यों लड़े, मगर शायद कोई कचेरी वगैरह का मामला था और दोनों आपका नाम बार बार लेते थे। फिर साहब ने फरिश्ते बीबी को भी इधर बुलवा लिया। वो पता नहीं कुछ बोली या नहीं, इनकी आवाज ही नहीं आई। फिर वो आपके तहज़ाद चले गए और साहब देर तक फरिश्ते बीबी पे चीखते रहे। मैं खाने का पूछने गई तो देखा कि फरिश्ते बीबी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो जा रही हैं। मैंने पूछा कि किधर, तो बोली पता नहीं, वो रोती जा रही थी। फिर अगले दिन रशीद ने बताया कि साहब अपना ट्रांसफर कराची करवा रहे हैं। फिर साहब चले गए और फरिश्ते बीबी रुक गई। वो दम सादे सारी तफसीलात सुन रही थी। इसके पीछे क्या क्या होता रहा इसे खबर ही नहीं हो सकी कि फवाद ने हुमायूं को इसके खिलाफ लेकर आया था और फरिश्ते को इसने ऐसी क्या बात कही कि वो रोई। वो तो बहुत मजबूत लड़की थी, यूं कभी नहीं रोती थी। इसने तो इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। ओ खुदाया, इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो क्या करे, किससे पूछे? फरिश्ते तो कभी ना बताती, हुमायूं से भी उम्मीद नहीं, और तैमूर तो इसे देखने का रवादार न था। फिर क्या करे? सब्र और नमाज का सहारा। उसके दिल से आवाज उठी थी। बिल्किस को कोई जानने वाली मिल गई तो वो इससे बातें बगाड़ने जरा फासले पे जा खड़ी हुई। महमल ने कुरान उठा लिया। वो कुरान लिए बगैर घर से नहीं निकलती थी। इसे आहिस्ता से खोला। कल जिधर से तिलावत छोड़ी थी इन आयात पे निशान लगा था। वो गौर से ध्यान से आगे से पढ़ने लगी। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम इन चीजों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। लम्हे भर को इसका दिमाग चकरा कर रह गया, मगर फिर फौरन खुद को सरजनश की। ये कोई फाल निकालने की किताब तो नहीं है, इसीलिए इसने मुझे ऐसे सवाल करने से मना किया है। मैं भी ख्वाह मख्वाह वो सर झटक कर आहिस्ता से आगे तिलावत करने लगी। अगली आयात दूसरी चीजों से मुताल्लिक थी। इसकी सोचों पे बिल्कुल खामोश लब से किसी और तरफ तवज्जो मबजूल करवाती उसके उलझे दिमाग को सुकून आने लगा। जो भी हुआ कभी न कभी खुल ही जाएगा, उसे परेशान होने की जरूरत न थी। वो लब तरन्नुम से तिलावत करने लगी। रात के 2 बज चुके थे और हुमायूं अभी तक घर नहीं आया था। वो मुस्तरिक सी लाउंज में बैठी थी, बार बार दीवार पे आवेजा घड़ी को देखती और फिर दरवाजे को। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, मगर दरवाजा हनूज साकित और जामिद था।
बाहर भी खामोशी सी इसके दिल में वसवसे से आने लगे, ना जाने वो ठीक भी है या नहीं, क्या पता इसकी गाड़ी खराब हो गई हो, क्या पता किसी मुश्किल में फंस गया हो। इसने बेख्तियार इसके लिए दुआ की थी। दफ्तन गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और फिर गेट खुलने की आवाज। वो मुड़कर दरवाजे को सप्यासी नजरों से देखने लगी। कदमों की आवाज और फिर भारी चरचराहट के साथ दरवाजा खुला। कैप और स्टिक हाथ में लिए वो थका थका सा यूनिफॉर्म में चला आ रहा था। अंदर दाखिल होकर इसने मुड़कर दरवाजा बंद किया और फिर चंद कदम आगे आया। दफ्तन इसे बैठा देखकर हुमायूं के कदम थमे। चेहरे पर हैरत भरी नागवारी उमड़ आई। तुम इधर क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम, आपका वेट कर रही थी, आपने बहुत देर लगा दी। वो आहिस्ता से बोली, मैं देर से आऊँ या जल्दी आऊँ, खुदा के लिए मेरे इंतजार में इधर मत बैठा करो। इसे बहुत तामुल से इसका बेजार लहजा सुना। फिर धीरे से बोली, मैं परेशान हो गई थी कि खैरियत। मन नहीं गया था मैं, तो काम होते हैं। अगर आइंदा तुम मुझे इधर बैठी मिली तो मैं घर में नहीं आया करूँगा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो मोहम्मद। वो झड़क कर कहता तेजी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इसने बड़ी जबरोजब्त से आंसू पी लिए, यहाँ तक कि वो अपने दरवाजे के पीछे गुम हो गया। तब इसने गोद में धरे हाथ उठाया और अपनी व्हील चेयर को कमरे की तरफ मोड़ने लगी। कभी तो इसे एहसास होगा कि ये वही मोहम्मद है जो कभी इसकी मनचाही बीवी थी, और जब वो ये महसूस करेगा तो पलट आएगा। इसे यकीन था, और यही यकीन इसने दिल में उठते दर्द को दिलाकर दबाया था। वो तारकोल की सड़क पे आज फिर बिल्किस के साथ अपनी व्हील चेयर पे जा रही थी। बाहर का मौसम इसकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर डालता था। ये अलग बात थी कि इसकी माजूरी पे रत्ती बराबर भी फर्क न आया था। बिल्किस इधर उधर की बातें करती इसकी व्हील चेयर धकेल रही थी। वो आज भी इसे नहीं सुन रही थी, बस खामोश पुरसुकून निगाहों से दूर उफक को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये ठहराव इसकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा था। बिल्किस, तुम्हारे मेरे ताया का घर पता है? एकदम ही किसी ख्याल के तहत वो चौंकी और फिर पूछ लिया, ना बीबी, मैं तो इधर कभी नहीं गई। अच्छा, मुझे रास्ता पर याद है, तुम मुझे इधर ले चलोगी? पैदल? वो हैरान हुई। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, बस जितना फासला यहाँ से मरकज तक का है इतना ही है। मैं पैदल भी आ जाया करती थी। इसे बेख्तियार वो शाम याद आई जो वसीम से इसे अपने रिश्ते का सुनकर वो रोती हुई पैदल ही मस्जिद के सामने सड़क पे आ गई थी, और इसने हुमायूं से कहा था कि वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं, और फिर चले फिर ठीक है, आप रास्ता बताएं। बिल्किस की आवाज़ पे वो यादों के हुजूम से निकली और रास्ता बताने लगी। छोटी सड़क से एक रास्ता पुल से होता हुआ इनके सेक्टर में जा उतरता था, जिससे वो 20 मिनट में इधर पहुंच सकती थी। आज वो 20 मिनट एक पूरी सदी लग रही थी। वो इस रास्ते पे जाते ही दूर कहीं खो गई थी। न जाने वो सब कैसे होंगे, इतने ही ऐशो आराम से रह रहे होंगे जितने पहले थे। क्या इनमें से किसी ने इसको याद भी किया होगा? कभी वो अस्पताल भी आए होंगे या नहीं? और न जाने फवाद ने जाकर हुमायूं से क्या कहा था, जिस पे फरिश्ते रोती रही। बहुत याद करने पे भी ऐसी कोई बात जहन में नहीं आई जो वो हुमायूं से यूं कह सकता, या शायद इसकी सोचने की सलाहियत अफसोस होती जा रही थी। ये आपका घर है जी, बड़ा सोना है, बिल्किस कह रही थी, और वो चौंक कर इस ऊंचे आलीशान महल नुमा घर को देखने लगी। इसका पेंट, खिड़कियों के शीशे और पुरानी गेट बदल गए थे। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। ये वो घर था जहां इसने अपनी जिंदगी के 21 साल गुजारे थे, और फिर इसी से वो एक रात निकाली गई थी। बज़ाहिर रुखसती की आड़ में इसे इस घर से बेदखल कर दिया गया था। बेल बजाओ बिल्किस। बिल्किस आगे बढ़ी और घंटी बजाई। चंद ही लम्हों बाद कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ता हुआ गेट खोलने आ रहा हो। इसके दिल की धड़कन ठहर सी गई। वो इतने सालों बाद किसी देखने जा रही थी। फवाद, हसन, आगा जान। दरवाजा आहिस्ता से खुला और किसी ने सर बाहर निकाल कर देखा। जी, किससे मिलना है? वो हुलिया और लहजे से मुलाजिम लगता था। बिल्किस ने जवाबन मोहम्मद को देखा तो हिम्मत मुश्तमा करके बोली, आगा करीम घर पे हैं? मुलाजिम के चेहरे पे जरा सी उलझन उभरी। कौन आगा करीम? आगा करीम जो इस घर के मालिक है, जिनका ये घर है, और ये हाउस नंबर 230 है ना? आहो जी, ये 230 है, मगर ये तो चौधरी नजीर साहब की कोठी है। इधर तो कोई आगा करीम नहीं रहते। बीबी, कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? बिल्किस ने हौले से कहा तो इसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। नहीं, यही घर है। आगा करीम 7 साल पहले इधर ही रहते थे। 7 साल तो बड़ा लंबा अरसा होता है मैडम जी। खुदा जाने वो आप किधर गए होंगे। अच्छा, आप ठहरो, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। वो इन्हें वहीं छोड़कर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी एक नौजवान के हमरा हुई। जी फरमाइए। वो 20-21 बरस का मुहज्जिब और शाइस्ता सा नौजवान था। वो इधर आगा करीम और इनकी फैमिली रहती थी। वो लोग किधर गए? मैम, हम 2 साल से इधर रह रहे हैं।
2 साल पहले हमने एक शख्स आमिर साहब से ये घर खरीदा था। हो सकता है इनको आगा करीम ने ये बेचा हो, मगर मैं इनके बारे में कतई ला इल्म हूँ। आगा जान ने ये घर बेच दिया, मगर क्यों? वो शौक सी रह गई। मालूम नहीं मैम, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इसका सर नफी में दाएं से बाएं हिला। लड़का मुआज़त करके वापस चला गया और वो परेशान सी बैठी रह गई। बीबी हमसायों से पूछते हैं, और इसके मना करने से कबल ही बिल्किस साथ वाले घर की घंटी बजा चुकी थी। इस घर में कौन रहता था? खासा जाना पहचाना सा घर था, मगर याद नहीं आ रहा था। वो मुश्किल 1 मिनट बाद ही गेट खुल गया। महमल ने गर्दन उठाकर देखा, इधर अध खुले गेट के इस पार ब्रिगेडियर फुरकान खड़े थे। शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी और भरपूर मुस्कुराहट लिए हुए से देख रहे थे। इन्हें देखकर इसे बहुत कुछ याद आने लगा। अस्सलाम वालेकुम लिटिल गर्ल, मैं काफी देर से आपको ठहरे से देख रहा था। आइए अंदर आ जाएं। उन्होंने गेट पूरा खोल दिया और एक तरफ को हट गए। बिल्किस इसकी व्हील चेयर धकेलती अंदर रोश पे चली आई। इधर आ जाइए। वो लॉन में घास पे रखी लॉन चेयर्स को जोड़ने लगे, यूं कि व्हील की चेयर की जगह बन जाए। कैसी हैं आप? वो इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठा और बहुत शाइस्तगी से पूछने लगे। इनका मखसूस लबो लहजा इसी तरह भारी था, अलबत्ता सख्ती की जगह नरमी ने ले ली थी। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जरा सा मुस्कुराई और सर झुका लिया। फिर कुछ सोच कर इसी झुके सर के साथ कहने लगी, मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जानता हूँ। मैं आपको देखने अस्पताल आता था। इसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखों में हैरत उतर आई थी। अच्छा, वो फिर इसे याद आ गया। हाँ, वो मुझे नर्स ने बताया था, तो वो आप थे? जी हाँ। वो धीमे से मुस्कुराई। आपकी अमानत ने मेरी जिंदगी बदल दी बेटा। वो बिना पलक झपके इन्हें देख रहा था। मैंने 2 साल वो पॉम्पलेट नहीं खोले। फिर जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि हर जगह अंधेरा दिखने लगा, तो ना चाहते हुए भी मैंने इनको खोल लिया। मेरा ख्याल था इनमें किसी तंजीम का लिटरेचर होगा या किसी सियासी पार्टी का मंशूर, मगर इनमें तो सिर्फ कुरान की आयत थी और इनका सादा तर्जुमा। मैं पढ़ता गया और फिर सब बदल गया, सब ठीक हो गया। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने सारी बात समेट दी। वो चुपचाप इन्हें सुनती गई। आप कुछ अर्सा पहले घर शिफ्ट हो गई थी, मुझे पता चला था। अब तबीयत कैसी है आपकी? फाइन। फिर लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद बोली, आगा जान वगैरह किधर हैं? उन्होंने घर क्यों भेज दिया? जिन दिनों वो गए थे मैं मुल्क में से बाहर था। बस मुलाजिम से ही थोड़ा बहुत सुना था कि शायद तीनों भाइयों ने जायदाद का बंटवारा किया है और घर बेचकर रकम तकसीम करके अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। आपके एक्सीडेंट कभी मेरे मुलाजिम ने ही बताया था। कब की बात है ये? कब बेचा उन्होंने घर? आपके एक्सीडेंट के तकरीबन 1.5 साल बाद। ओह, इसके लब सिकुड़े और फिर इसने गहरी सांस ली। कोई अंदाजा है आपको कि वो कहाँ गए? अब मैं इनसे किधर मिलूं? ओह, कतई नहीं। उन्होंने मुआज़्ज़फ़ खाना अंदाज में सर नफी में हिलाया। हमारे कभी इतने ताल्लुकात थे ही नहीं। हाँ, आगा असद के बारे में मैंने एक दोस्त से सुना था। वो क्लब में आगा असद के साथ होता था। इनके अल्फाज पे वो चौकी दिल जोर से धड़का। क्या क्या सुना था? ये कि इनको कैंसर हो गया था, फिर इनकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता चला? वो सांस रोके हक्का बक्का सी बैठी रह गई। आई एम वेरी सॉरी महमल। इन्हें अफसोस हुआ। कब हुआ ये? चंद लम्हे बाद इसके लब फड़फड़ाए, आंखें पथरा सी गई। गालबन 5 साल कबल इनके घर बेचने के 6-7 माह बाद। और इनके बच्चे माज और मुईज तो बहुत छोटे थे। मालूम नहीं, यतीम बच्चे तो फिर मजबूरन रिश्तेदारों के तसल्लुत में ही रहते हैं। अल्लाह इन पर रहम करे। और वो लफ्ज यतीम बच्चे महमल के दिल में खुप गया। बहुत पहले पड़ी गई एक आयत जहन में गूंजी। इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे कमजोर यतीम औलाद छोड़ जाते। यतीम बच्चे? असद चचा के बच्चे यतीम हो गए? आरजू, माज, मुईज वो अभी तक बेयकीन थी। तो फिर कब वो ब्रिगेडियर फुरकान को खुदा हाफिज कहकर बिल्किस के हमरा बाहर आई, इसे कुछ पता ना चला। दिलो दिमाग बस एक ही नुक्ते पे मुंजमद हो गए थे। असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। बेख्तियार इसे लाउंज का वो मंजर याद आया। सोफे पे गिरी महमल और इसको थप्पड़ और जूतों से मारते असद चचा और ओफरान चचा। ओफरान चचा न जाने वो कहाँ गए और आगा जान सब किधर चले गए। वो इन लोगों को किधर ढूंढे, मगर वो इनको क्यों ढूंढना चाहती थी? ऐसा खुद से पूछा। क्या वो ये देखना चाहती थी कि इनको इनके किए की सजा मिली या नहीं? कि आखिर ये कानूनी फितरत है, या वो इनके खून के रिश्तों की मोहब्बत पे इनको याद कर रही थी? शायद खून की मोहब्बत गालिब आ गई थी, या शायद अपने सबसे करीब रिश्तेदारों, शोहर और बेटे के टुकराए जाने के बाद इसे इस किसी रिश्ते की जरूरत थी। हाँ, शायद ये बात थी। वो इन्हीं सोचों में उलझती घर वापस आई थी। सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हील चेयर को खुद घसीटती खींचती लान में लाई थी।
शबनम के कतरे घास पे बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हम की आवाज सुनाई दे रही थी, मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसानों की समझ में न आने वो बात। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के इस पार मस्जिद की इमारत थी। सुबह के वक्त मस्जिद की सहन में बच्चों की नाज़ा क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज में कुरान पढ़ा करते थे। इनकी तजवीद की हल्की आवाज इनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आवाज आज भी आ रही थी। वो वहीं दीवार के साथ व्हील चेयर रोके कान लगा कर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे, तर्जुमा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हत्तातन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और करीब हम एहसान करने वालों को ज्यादा देंगे। आज इसने बहुत अरसे बाद वो आयत सुनी थी। बेख्तियार वो गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा था, सूरह बकरा की 58 आयत। जब उन्होंने हत्तातन के बजाय हंतातन कहा था, महमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी वो उलझ सी गई और वो सफ़ा निकाला। इसमें इसने कोई खास नोट्स नहीं लिखे थे, शायद पुराने रजिस्टर में हो जो अलग से थे। इसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह इसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इन्हीं को ढूंढने स्टडी में आई थी। दरवाजा अध खुला था। वो अंदर आ गई। हुमायूं इसकी तरफ पुश किए रेक में से कोई किताब निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नजर इसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सदमेहरी, बेहिसी, मगर ज्यादा दिल जलाए बगैर वो कमरे के मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। इसके नोट्स वहीं रखे थे। गिर्द की एक तह इन पे जमी थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे, इसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के इसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पे हल्की सी गिर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गिर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, हुमायूं बगैर किसी तमीज के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पुलट करते हुए बोला था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मिट्टी रजिस्टर से उड़कर हर तरफ जाने लगी। इसने वो मुश्किल रुख मोड़ कर इसे देखा। वो बेनियाज से किताब के बर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलहदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। इसकी कस्टडी इससे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद इसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती इसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा कि वो मेरे साथ रहे, और अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम इसे मजबूर मत करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। ऐसे किताब रेक में रखी और बिना इसको देखे लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के ज़ेरे असर पत्थर बनी ही बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह इसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी इसके बगैर। एकदम इसने सर झटका। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर हम ज़बान से वो ही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। बेख्तियार ही वो मध्यम सी आवाज में इसकी समाज से टकराई थी। इसके दिल को जिससे करार सा आ गया था। इसने रजिस्टर खोला। नोट्स में इस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा हुआ था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजी से हित्तात और यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो वो तमस्खर उड़ाते हुए ज़बानें मरोड़ कर हिंतातन हिंतातन कहते हुए दरवाजे से दाखिल हुए। हिंतातन का मतलब होता है गंद। इससे आगे सफ़ा खत्म था। इसने जहन से तमाम सोचों को झटक कर इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाकई इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जैसी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने गंद किस चीज को कहा? जब इनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे तो उन्होंने गंद गंद क्यों कहा? एक तरफ वो इतना ज़हनी थे कि हित्तातन से मिलता जुलता लफ्ज ढूंढ लाए और दूसरी तरफ इस लफ्ज को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों इन्हें सही लफ्ज ना बोला था? हिंतातन क्यों कहा? वो समझ न पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर पढ़ने की भी नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे। एक आंसू इसकी आंख से निकला और रुखसार पे फिसलता चला गया। तो जिस हाल में भी रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी हूँ। निहायत बेदर्दी से इसने अपनी हथेली की पूंछ से आंसू रगड़ डाला था। रिमोट टोस्ट के छोटे छोटे लुक में ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा कोई और न था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटती डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वो आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया।
محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے توست کا بچا ٹکڑا زور سے پلیٹ میں واپس پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنا ہی۔ I don't want to talk to you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مگر مجھے کرنا ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ واٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی تھی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کو جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے تھے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہی ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تاثر سے دور جاتی دیکھتی رہی۔ یہ تلخ لہجہ، یہ بدمزاجی، یہ اندر بھرا ہوا زہر، یہ کس نے تیمور کو اندر ڈالا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینس کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سے جائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کے نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی طائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزن، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بدمزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے، اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر بولا تھا، راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے، پھر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتے ہیں، ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں، ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں، تم الگ ہو رہے ہو؟ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پہ رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کے آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا؟ اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکڑ ٹکڑ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا اور نہ آج۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی، تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گی، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو؟ پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے گا؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ العالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی، وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے 12 سال ذہن کے پردے پہ اترے ہی بغیر ہی سرک گئے تھے، اور ایک وہ سال جو اس نے گھر میں محبت اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، اور ایک ساتھ کی گئی شاپنگ۔
हर चीज इसकी याददाश्त पर से किसी फिल्म की तरह गुजरती रही और हर याद इसके दिल में आंसू गिराती रही। और अगर तैमूर भी इसके साथ ना रहा तब वो क्या करेगी, किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने इसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? या अपने चचाओं के पास? क्या वो इसे रखेंगे या फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तन्हा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थे, फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था कि चिलचिलाती धूप में सिला खड़ा किया गया था, न छत न साहिबान। मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक असेब की तरह इसके दिल से चिमट गया था। बार बार ये सवाल ज़हन में उठते और वो बमुश्किल इनको झुठला पाती। और फिर आखिर कब तक वो इनको यूं झटका देगी? कभी न कभी तो इसे इनका जवाब चाहिए होगा। और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे, इसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते थे। कभी एक जगह से खुल जाती तो कभी दूसरी जगह से, और यही किस्सा सामने आ जाता। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो हत्ता तन। मगर हैकल सुलेमानी का दरवाजा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से निकाल बाहर की जा रही थी, अंदर कैसे जाती? वो सुपहर बहुत जर्द सी उतरी थी। बिल्किस ने इसे बेड से व्हीलचेयर पर बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लाउंज में सोफे पे किताबें फैलाए बैठा था। इसे आते देखकर एक खामोश नजर इस पे डाली और फिर निगाहें किताब पे जमा दी। वो प्यासी नजरों से इसे तकती रही, यहाँ तक कि बिल्किस व्हीलचेयर लाउंज के दाखिल दरवाजे तक ले आई थी। दरवाजे की चौखट पे लगे गिलास में बेलबूटो और नक्शोनिगार के दरमियान इसे सोफे पे बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से इसे बाहर जाते देख रहा था। बिल्किस व्हीलचेयर लॉन में ले आई। ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो बुरे बाल पीछे कोड़ने लगे थे। इसने आंखें मूंद कर लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाहिए, तभी दीवार के इस पार से मधम मधम सी बिनबिनाहट समात में उतरी। और कसम है रात की जब वो छा जाती। इसने चौंक कर आंखें खोली। इसे घर आए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी। न जाने क्यों, बिल्किस मुझे मस्जिद ले चलो। एकदम से इसका दिल मचल गया। बिल्किस ने फरबदारी से सर हिलाकर व्हीलचेयर का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते किधर हैं? ऐसे सोचा कि इसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। चलो ठीक है, वो जानती थी फरिश्ते थकी हुई होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ माहौल की एक्सरसाइज और फिर मसाज करने में लगी रही थी। फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी। वो शाम को मस्जिद जाएगी, फिर अभी इसे क्यों थकाए? तो इसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तक कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास सिमरन लॉन वैसे ही खूबसूरत था जैसा वो छोड़ कर गई थी। सफेद सुतूनों पे खड़ी आलीशान ऊंची इमारत, चमकते संगमरमर के बरामदे, कोनों में रखे सब लहलहाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर हंगामे से पाक ठहरा हुआ कोना कोना सुकून में डूबा माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी ताजगी भरी बावकार सी दुनिया। इसके दरो दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी। आंखों में चमक आ गई और फिर बेख्तियार इधर उधर गर्दन घुमाती वो हर चीज देख लेना चाहती थी। बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता व्हीलचेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगमरमर की चमकती सीढ़ियां उतरती थी। इन पे मुसलसल ऊपर नीचे लड़कियां आ जा रही थी। सफेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ, पार्ट्स कलर के स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां हाथों में कुरान और किताबें पकड़े हर किसी को मुस्कुरा कर सलाम करती आस पास नजर आ रही थी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो मुस्कुरा कर एक के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी और कोई इसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पैर करने की हिरस रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। इसका पूर खुशी में डूब रहा था। माहौल, ये दर दीवार, ये तो इसकी जात का हिस्सा थे। वो कैसे इतना अरसा इनसे कटी रही। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पे बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी। ना किसी ने रुक कर तर्स से पूछा कि इसको क्या हुआ है, ना किसी ने तरहम भरी निगाह डाली, ना कोई तजस्सुस, ना कुरेद। वो कोने में व्हील चेयर पे बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी ही देर वो इधर ही बैठी रही, यहाँ तक कि बिल्किस ने मरकज तक जाने की इजाजत मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं और फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था। मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक उलूही सी चमक ने महमल के चेहरे का अहाता कर रखा था। वो इस माहौल में आकर जैसे बहुत खुश थी और इस खुशी को अपने अंदर समेट कर अब वो दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज इसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था। बिल्किस आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करती, इसकी व्हील चेयर चलाती मरकज तक ले आई। मरकज वहाँ से बहुत करीब पड़ता था। वो गोश्त बनवाने दुकान में चली गई, जबकि महमल बाहर बैठी रही। गाड़ियाँ बहुत तेजी से गुजर रही थी। लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे।
मोटर साइकिलें बहुत शोर मचा रही थी, रोशनी बहुत तेज थी। जरा सी देर में सारा सुकून हवा हो गया। इसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बिल्किस, वो लिफाफा थामे दुकान से बाहर आई तो मामा सख्त उकता चुकी थी। बस बस, ये सामने वाले प्लाजा में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज्जा ले लूं, वरना बाबा खाना नहीं खाएगा। बस बीवी 5 मिनट। वो तेज तेज व्हील चेयर धकेलती कह रही थी। महमल बेजारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे पड़ती गाड़ियां इसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसे ही किसी गाड़ी ने कभी इसे टक्कर मारी थी। बल्कि एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने इसे खड़ा करके अंदर चली गई और वो इस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल्स को तकते इसी गाड़ी को याद करने लगी जिसने इसे टक्कर मारी थी। न जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं, क्या हुमायूं ने इस पर मुकदमा किया होगा, इसे जेल भेजा होगा, मगर ये मुकदमा करने से इसका नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता था। खैर जाने दो, मैंने माफ किया सबको। ऐसे सर झटका और फिर बेचैन और मुंतजिर निगाहों से रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल को देखा। बिल्किस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वो यूं ही बेजारी से निगाह इधर उधर घुमाती रही और वो वाकईतन बहुत बुरी तरह टटकी। रेस्टोरेंट के ग्लास वॉल की तरफ का मंजर साफ वाज़ेह था। कोने वाली मेज पे बैठा वो मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटिक इसकी मुस्कुराहट को देखे गई। क्या इसे मुस्कुराना याद था? क्या इसे मुस्कुराना आता था? और तब इसकी नजर हुमायूं के मुकाबिल बैठी लड़की की पे पिछली शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा, नदारत कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस लड़की को वो अच्छी तरह समय पहचानती थी। वो आरजू थी और वाकई आरजू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाज़ेह और अयां थी। तो ये बात थी। हुमायूं, दाऊद तुम्हें आरजू ही मिली थी। इसने गम से लब काटते हुए सर झटका। फरिश्ते ठीक कहती थी। इसकी माजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली कमान सी आईब्रो वाली शातिर लड़की थी जो इसके शोहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। इसने कहा था वो हुमायूं को इससे छीन लेगी। इसने ठीक ही कहा था। महमल ने कर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थी जब बिल्किस की इसकी व्हील चेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। इसके सामने एक ही मंजर था। कोने के टेबल पर बैठे हंसते मुस्कुराते दो नपूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हील चेयर पे बैठी थी। बिल्किस कब इसे कमरे तक लाई इसे कुछ इल्म न था। किसी ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान सी इसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा शानों पे फैला। इसने गीले भूरे बाल समेट कर दाएं शाने पर डाल रखे थे। शायद अभी वो नहा कर आई थी। किधर गुम हो मामल? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंचों के बल इसके सामने कारपेट पर बैठी और इसके दोनों हाथ थाम लिए। दाएं शाने पे पड़े इसके गीले बालों से पानी के कतरे टपक कर दामन को भिगो रहे थे। आप ठीक कहती थी फरिश्ते, वो जिसे हार गई थी। फरिश्ते को लगा वो रो रही है मगर इसके आंसू बाहर नहीं गिर रहे थे। मैंने आज खुद इन दोनों को देखा। किन दोनों को? वो बुरी तरह चौंकी। हुमायूं और आरजू को। आरजू? असद अंकल की बेटी आरजू? हाँ वही। क्या असद चचा की डेथ हो गई है? तुमने इन्हें किधर देखा? वो इसका सवाल नजरअंदाज कर गई। मरकज के एक रेस्टोरेंट में वो दोनों लंच कर रहे थे या शायद हाई टी। फरिश्ते हुमायूं हंस रहे थे। मैं तो समझी थी कि वो हंसना ही भूल गए हैं, मगर ये भी हो सकता है कि पता नहीं। मगर वो मुतज़ब्ज़ब थी, कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है वो आरजू की वजह से मेरे साथ यूं कर रहे हैं। इसने कहा था कि वो हुमायूं को मुझसे छीन लेगी और इसने ये कर दिखाया। क्या वो कभी इस घर में आई है? हाँ वो अक्सर आती रहती है, मगर तुम्हारे घर शिफ्ट हो जाने के बाद वो कभी नहीं आई। वाकई? इसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। आखिर वो किस हैसियत से आई थी इसके घर? आपने इसे निकाला क्यों नहीं? अंदर क्यों आने दिया? ये मेरा घर नहीं है मामल, मुझे इसका हक नहीं है। महमल चुप सी हो गई। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। हुमायूं के कुछ गेस्ट आने हैं कहने पे, अभी पहुंचने वाले होंगे। मैं जरा किचन देख लूं। वो इसके हाथों से हाथ निकाल कर उठ खड़ी हुई। गीले बाल शाने से फिसल कर कमर पे जा गिरे। आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, वो कहे बगैर ना रह सकी। वो तो मुझे पता है। वो नरमी से मुस्कुराई और जर्द दुपट्टे का पल्लू सर पे डाला, फिर अच्छी तरह चेहरे के गिर्द हसार सा बनाकर दायां पल्लू बाएं कंधे पे डाल दिया। यूं के बाल और कान छुप गए। तुम आराम करो। वो बाहर निकल गई और महमल वहीं उदास वीरान सी बैठी रह गई।
बाहर से चहल पहल की मधम मधम आवाजें आ रही थी। काफी देर बाद इसने खिड़की से हुमायूं की गाड़ी को आते देखा था। इसके हमरा 2-3 मोअज़्ज़िज़ अशखास भी थे। हुमायूं इसी लिबास में था जिसमें अभी शाम में आरजू के साथ बैठा था। गोया वो वाकई वही था, ये इसका वहमा न था। वो हसरत से खिड़की से लगी इनको अंदर जाते देखती रही। इसके कमरे में अंधेरा उतर आया था। बाहर रोशनी थी, बाहर वाले इसे नहीं देख सकते थे और वो बाहर वाला तो शायद अब कभी भी इसे न देख सके। इसके पास अब बेहतर इंतखाब था। जवान, स्टाइलिश, जिंदगी से भरपूर औरत। बेशक वो महमल की तरह खूबसूरत न थी, मगर इसकी तराश खराश की गई शक्ल अब की महमल से हसीन लगती थी। क्या कभी हालात बदलेंगे? क्या कभी हुमायूं लौटेगा? क्या कभी इसकी माजूरी खत्म होगी? क्या कभी तैमूर इसके पास आएगा? क्या ये घर इसका रह सकेगा? क्या वो दर बदर कर दी जाएगी? क्या वो बेसहारा छोड़ दी जाएगी? अंदर का खौफ और बेबसी आंसुओं की सूरत में आंखों से निकलकर चेहरे पे लुढ़कने लगे। मुस्तकबिल एक भयानक सियाह पर्दे के मानन हर तरफ उछाता दिखाई दे रहा था। इसने कर्ब से आंखें मीच ली। अल्लाह हर चीज से बड़ा है जिससे मैं डरती हूँ और खौफ खाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वो एक कलमा वो बार बार से लब दोहरा रही थी, यहाँ तक कि अंदर का कर्ब कदरे कम हुआ और जरा सा सुकून आया तो इसने दुआ के लिए हाथ उठाए। अगर इन लोगों ने मुझे छोड़ ही देना है, निकाल ही देना है, तो मुझे किसी बेकदरी के हवाले मत करना। मेरे मालिक कोई उम्मीद का सिरा दिखा दे, कोई रोशनी दिखा दे। वो बिना लब हिलाए दुआ के लिए उठे हाथों को देख रही थी। आंखों से आंसू इसी तरह बह रहे थे। फिर जब बहुत रो चुकी तो चेहरा पहुंचा और साइड टेबल पे रख के अपने सफेद कवर वाला कुरान उठाया। इसके फ्रंट कवर पर मिटा मिटा सा मीम इसी तरह लिखा था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक करो। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।